So this gentleman was predicted by Induna Sharma that you have taken a parrot, put it in a cage. After that, your career got spoiled. So Mercury is parrot, sixth house is jail. Mercury looks at 12th house, that means something from the sky. And Rahu's degreecal aspect affects this combination. And if you notice, in Navmansh, Rahu Mercury are in the 12th house. Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. Okay, ladies and gentlemen, today with a heavy heart, must tell you that last week, one of the finest astrologers in Banaras, that is Varanasi, expired. He was pretty old. I had the fortune of meeting him twice, and one of the most brilliant astrologers. So, way back in 2007, when I decided in November to start Saptarishis Astrology magazine, the digital magazine, text magazine, not the YouTube thing. So I traveled to Banaras and stayed there for more than 10 days scouting for astrologers. Then I met Chandramouli Upadhyay ji, who was a very popular astrologer for Bollywood celebrities. And we spent some time in Banaras Hindu University discussing. And he heard about my passion of removing manuscripts. So at that time, he said, if you're so interested, go and meet Indunath Sharma ji. He has a manuscript for Kal Sarp Yoga in Sanskrit with 250 variations in Kal Sarp Yoga. And that is the reason over a period of 10 years, I have told people that many modern scholars tend to say that there is no Kal Sarp Yoga, etc. and all that. But those who have seen it in practice working know what it is. But more than that, we must understand modern scholars have not spent any time trying to find out hidden manuscripts. Second, most of the manuscripts were burnt in earlier times. Current organizations, institutes have absolutely no interest in removing manuscripts. We used to go buy manuscripts from various places and we used to put it in our website. I think it is still there, saptarishisastrology.com. We did that for many years until a very bad incident happened. Anyway, when I met Indunath Sharma ji, it took me 2-3 times. There was no address. I was just told Ichal Kanji, something like that. So I had gone 2-3 times. Finally, my flight was at 7 o'clock. And I met him in the afternoon. He said, I will show you what is the difference between science and intuition. So I was sitting with my guide. So he said, just think in your mind a number between 20 and 30. And also think of a flower. But don't tell me the number, don't tell me the flower. So we thought, by the time he had a small slate with a white chalk, small kind of chalk, black slate, he was writing something in that. And he put it opposite. So he asked me my number, my flower, I said it. My guide also said the same. And then
he turned over the slate, which he had already written before he spoke. He said, now read. So I saw some calculations, mathematical calculations, and the exact number and flower for both of us was already written over there. It was magic for me. He then told me that's a particular science of Anga Vidya, body parts. He said, I can fool you by saying this is my intuition or I have some siddhi of some god. But he said, no. He said, this is when you entered, what body part you touched, etc., etc. And through that, this calculation is there. I was quite stunned. Then one thing very phenomenal was he said, see, I have problem in my leg. I can't walk. But I will not do any remedy for it. I want to bear that karma. Then it was after a few more years, I met him again and I shot some videos with him. Somewhere in between the video, he said, no, stop it. And I still remember discussing Laghu Parashari. Laghu Parashari is a small book, 44 shlokas, considered the Gita of astrology. So I told him, Ram Ratan Ojha used to know 6 versions of different meanings for each shloka. So he said, he's from our parampara, he learned from my father or grandfather, something he said, he learned only 6, but I learned 13. 13 variations of each shloka. Now when you think of it, a shloka in Sanskrit has a straight meaning. But to have 13 hidden different meanings for each shloka of Laghu Parashari was the most stunning part. Unfortunately, he was cheated by many astrologers and the astropolitics of Banaras. And such people don't remove knowledge. We quietly sit and watch the politics that happen without forgetting that we are more guilty of harming in not removing astrology. And then next life or next to next life, you land up traveling to astrologers, but you never get a good prediction. This is one of the reasons why some people never get good predictions. Anyway, enough of an introduction. Our Varanasi course is starting January 19th. And that Ashutosh Ji will be doing it. Ashutosh Ji, welcome to Saptarishi's Astrology. Dhanyavad Sunil Ji. Ashutosh Ji has traveled all over Banaras, many other parts of India. And he learned quite a lot from Indunath Sharma Ji. I had told him to go because he is a bit near Banaras. I said, I had told him to go and get as much as possible out of this old gentleman. Indunath Sharma Ji used to have very, very big eyes and very powerful voice. I used to get scared sitting in front of him. You know? So, Ashutosh Ji, how was your experience with Indunath Sharma Ji? If you can share some techniques that you have learned from him, some rare techniques. He was a master in Prashna. देखिए, प्रश्न को कह लीजिए, मास्टर इन प्रश्न, जैमिनी, भृगु, मतलब ज्योतिष की कोई विद्या ऐसी नहीं थी, वो सारा यूज करते थे, सारा प्रयोग करते थे. So basically he learned everything in astrology, from Bhrigu to Prashna to Gemini. मैंने टेस्ट करने के लिए कई बार मैंने योगिनी के कुछ श्लोक बोले, या कई बार कभी गया तो मैंने जैमिनी के कुछ श्लोक बोले, तो मैंने देखा कि वो मैं जैमिनी के एक श्लोक बोल रहा हूँ और उसके डिस्क्रिप्शन में वो 5 श्लोक पहले और 5 श्लोक बाद के भी वो बता रहे हैं. So if you quote a shloka to him, he will, in order to explain that shloka, he will say 5 shlokas before that shloka, what is there in the book, and after that. By the way, just those who are interested in Gemini, let me quietly say, without offending anybody in
the world, the Vedic astrologers, the Gemini that is followed in Banaras is far, far different than what is being followed all over India and all over the world. Okay? Continue. बिल्कुल जैमिनी के अब भी मेरे अनुसार तो जैमिनी के बनारस में भी और कोई बचा नहीं है अभी मेरे अनुसार, हो सकता है कोई हो, लेकिन ये एक थे जिनको जैमिनी की काफी अच्छी जानकारी थी। जैमिनी के भी सूत्र प्रयोग करते थे, आरूढ़ भी प्रयोग किया करते थे, उपपद भी देखते थे, प्रश्न को भी यूज करते थे, सारी चीजों को एक में मिलाकर के यूज करते थे। तो ये विद्या थी इनके पास। So what you're saying is he used to combine Prashna, Gemini and everything in his reading. Correct? जी, सबसे पहले आप देखेंगे कि शायद 2008 की बात होगी, जब आपसे हमारी बात हो रही थी, जब आपने मैगजीन शुरू किया, 7 की बात होगी, शायद 2007 की बात होगी, जब पहली बार आपने इनका, इंदुनाथ शर्मा जी का और नीलकंठ शास्त्री जी का, दोनों का आपने नंबर दिया था, और फिर हम जाकर के मिले थे। तो कई बार इनके पास हम जग गए हैं, इंदुनाथ शर्मा जी के पास, और काफी चीजें इनसे सीखने को मिली, कई चीजें, कई परंपरा की चीजें सीखने को मिली। और सीधे शुरू में जब हमने देखा, जब हम गए बनारस, तो एक तो इनका घर खोजना थोड़ा मुश्किल था, तो घर के पास पहुंचे तो एक तालाब था, तो तालाब पे जाकर के चारों साइड वहां से रोड घूम रहा था, तो हम वहां कंफ्यूज हो गए कि अब कहाँ जाए, क्योंकि चारों साइड रोड था वहां से। तो वहां पहुंचने के बाद देखे तो एक महिला जो थी वो बर्तन धो रही थी, तो उनसे हमने पूछा, तो बड़ी सभ्य महिला थी, उन्होंने बोला चलिए मैं ले चलती हूँ। तो उन्होंने बर्तन छोड़ करके वो सीधे हमारे साथ, मतलब आगे आगे चलती गई, हम उनके पीछे पीछे चलते चले गए, और 10 मिनट चले होंगे, फिर उनका गली में घूमते उनका घर आ गया। बोली ये, फिर वो वापस चली गई। फिर हमने गेट खटखटाया, तो खुला गेट, तो देखे कि एकदम पालथी मार करके खूब बढ़िया से एकदम मेरुदंड सीधा एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, पूरा गोल मटोल चेहरा पूरा। तो हमने जाकर के वहां बैठ गए, तो पहला वही किसी का देख रहे थे वो, तो उससे पूछा कि एक फूल का नाम बोलो और एक संख्या बोलो। उसने बोला, वो ऑलरेडी स्लेट में लिखा होता, दिखा दिया। बोला पहली बार मैं देख रहा था, बोला यार ये आश्चर्यजनक विद्या है, न कुछ पूछा ना ही कुछ देखा और सीधे पहले ही लिख दिया, ये कैसे? तो पहली बार हम लोग 3 दोस्त थे, तीनों दोस्त उनके साथ ही गए थे, तीनों दोस्त साथ गए थे। तो उन दोनों का उन्होंने देखा चार्ट्स, उन दोनों का देखा। जब मेरी बारी, मैंने कहा मेरा भी देख लीजिए, तो बोले नहीं तुम्हारा नहीं देखेंगे, मेरा नहीं देखा उन्होंने। फिर हम बाहर आ गए, फिर उसके बाद फिर हम गए, 2 महीने के बाद फिर गए उनके पास। तो फिर जाते कई बार गया मैं, तो एक पारिवारिक संबंध जैसा हो गया, फिर काफी कुछ मतलब सीखने को मिला, सुनील, काफी कुछ सीखने को मिला। जैसे अभी आप लघु पराशरी की बात कर रहे थे, लघु पराशरी की अभी आप बात कर रहे थे, तो एक मुझे याद आता है कि मेष लगन और वृश्चिक लगन, ये दोनों लगन के लिए आप देखेंगे कि बुध जो होता है वो अकारक होता है। अकारक मतलब कि बुरा करने वाला होता है, दोनों लगनों के लिए, मेष लगन के लिए भी और वृश्चिक लगन के लिए भी। लेकिन एक कुंडली का डिस्क्रिप्शन करते हुए उन्होंने कहा था कि मेष लगन में इंसान मर जाएगा, लेकिन अगर वृश्चिक लगन में हो तो वो बच जाएगा। सोचिए, दोनों का स्वामी एक, लेकिन राशि का डिफरेंस है, तो प्रिडिक्शन डिफरेंस हो गया। ये लघु पराशरी का कुछ कोट करके उन्होंने इस तरह की बताया था। महादशा अंतरदशा की बात करें, हाँ, महादशा अंतरदशा कुछ था जिसमें उन्होंने यही बोला कि मेष लगन में इंसान मर जाएगा, लेकिन अगर वृश्चिक लगन होगा तो उसमें बच जाएगा। जो कोटेशन किया वो मुझे अभी याद नहीं है, बहुत साल पहले की बात है। अभी आपसे बात हो रही थी तो एक वाकया याद आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। ये
इसी तरह से आप देखेंगे कि एक श्लोक है कि जैसे अगर दूसरे स्थान से राजयोग बनता हो, अगर दूसरे स्थान से राजयोग बनता हो, तो अगर दूसरे स्थान का जो लॉर्ड है वो मेलेफिक प्लैनेट है, तो वो राजयोग का फल नहीं देगा। लेकिन अगर शुभ प्लैनेट है तो ही दूसरे स्थान से बनने वाले राजयोग का फल मिलेगा। Sure. So if Rajयोग is being formed by the second house, second lord, if it is a malefic planet, it will not give Rajयोग. But if it is a benefic planet, it will give Rajयोग. हाँ, इसके लिए भी उन्होंने लघु पराशरी का एक सिद्धांत और एक श्लोक बोला था। कई सारे मतलब उसके उप श्लोक का भी है, 40 श्लोक तो ऐसे लघु पराशरी में आते हैं, लेकिन उसके उप श्लोक है, मतलब उसके सब पार्ट भी बहुत सारे हैं जो हम लोगों के पास अभी है नहीं। तो वो तो श्लोक एक बार में होता है, वो उन्होंने बोल दिया, बस आप उसको याद कर सकते हैं तो कर ले। ये चीजें मैंने इनको देखा था कि ये खास करके प्लैनेट की डिग्री को बहुत ज्यादा कंसिडर करते थे। अच्छा। हाँ, प्लैनेट की जो डिग्री है उसको बहुत ज्यादा कंसिडर करते थे। और दूसरा जो सगुन होता है, जिसको अंग लक्षण कह लें, सगुन कह लें, उसको बहुत चेक करते थे। ये दो चीजें बहुत ज्यादा विचार में आती थी, एक प्लैनेट की डिग्री और दूसरा सगुन। जैसे एक एग्जांपल आप देखें, एक उन्होंने बताया था कि अगर चंद्रमा जो है, मून जो है, वो कैंसर साइन में हो और 27 से 30 डिग्री के बीच में हो, तो जब कभी भी जुपिटर की या फिर सैटर्न की अंतर्दशा आएगी, जब कभी भी जुपिटर की, हाँ ये फोटो रहा उनका, आप देखिए। मैं वो पार्ट पे लेके जाता हूँ चंद्रमा का। जी। When moon is placed in Cancer between 27 to 30 degrees. हाँ बिल्कुल। And Jupiter or Saturn's Antardasha, whichever is more malefic between both. तो आप देखेंगे कि जब भी उसकी अंतर्दशा आएगी तो किसी भी व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति है, उसको हेल्थ इशू होगा। So this will happen in the first dasha. हाँ बिल्कुल। We posted this technique in Saptarishi's Facebook research group. There is one research group we have. Okay, and some people have given comments on that how they have experienced this. Some gave positive comments. I have not seen all of them so far. I think 2 days back we did this. हाँ, और आप देखेंगे कि मैंने आपको कल एक व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भी भेजा था, वो देखिए कई लोगों ने उसको मतलब कि अप्रूव भी किया था कि उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई थी। तो 3-4 ऐसी घटनाएं हुई थी, मतलब एक दिन में कई लोगों ने भेजा। तो आप देखिए कि 27 से 30 डिग्री मतलब कितना सटीक इन्होंने बताया। जैसे एक ये चार्ट मैंने लिया, तो मून इज इन द 7th हाउस एंड अबाउट 27 डिग्री। हाँ, अबाउट 27 डिग्री। अब देखिए इस व्यक्ति का जो था वो आप देखेंगे कि जब सैटर्न की दशा चल रही थी तो ये व्यक्ति मतलब बेड से गिर गया, बच्चा था, ये गिर गया और इसको काफी इंजरी हुई, सर में इसको चोट लग गया था। ऐसे ही दूसरे चार्ट आप देखें, इस चार्ट को देखें। हाँ, so moon is Swagrahi in both the. See, this is the rare part about it, you know. Most astrologers, audience, I'd like to tell you, most astrologers, you know, we will think that a planet Swagrahi should give good results. But here, how beautifully he has given a hidden exception, that if it is from 27 to 30 degrees, then Jupiter or Saturn's Antardasha, in the first dasha running of the child, whichever of them is afflicted should give results, bad results. Bad result. ये सेकंड वाले एग्जांपल भी आप देखें कि मून जो है कर्क राशि में है, लेकिन 28 डिग्री पे होने के बावजूद इसको देखिए कि इसको हॉस्पिटल जाना पड़ा।
और काफी सीरियस इंजरी हुई थी, इसको भी सडन मतलब बीमार पड़ गया था ये व्यक्ति। आप देखेंगे कि ऐसे लोग बड़े दुर्लभ होते हैं क्योंकि मतलब इस तरह की विद्याओं में माहिर होते हैं। आज भी देखिए डिग्री का कोई प्रयोग नहीं करता, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि डिग्री का कोई प्रयोग करता हो। एक बार जब मैं इनके पास पहुंचा था, सुनिए, तो ये रामायण पढ़ रहे थे। अच्छा। और पूरी रामायण की किताब भींगी हुई थी, जो पेज था वो भींगा हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा गुरुजी ये किताब पूरी भींगी हुई है, क्यों? उन्होंने बोला बेटा मैं कभी रामायण नहीं पढ़ता। बोला कारण? बोले पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और पूरी आंखों से आंसू आते हैं और पूरी की पूरी रामायण भीग जाती है। तो आप सोचिए कि मतलब कितने हार्ट के कितने प्योर, मतलब कितना प्योर हार्ट है कि रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं और रामचरितमानस पढ़ने के क्रम में आंखों से आंसू आने लगे और सारी की सारी रामचरितमानस की किताब जो है वो भीग गई। ऐसे लोग बड़े दुर्लभ हैं और आप इनसे It's the real thing, you know. I always believe rituals or getting into spirituality has to make changes in us. And if it doesn't, then it only becomes a ritual, like Ghanti Bajana, but no heart. You know, I know so many people throughout the day, they play Ramcharitmanas in their house by YouTube or audio, and instantly will cheat, you know, without blinking. But it's okay. Nice to know that Indunath ji was a Ram Bhakt. और आप उनसे वेदांत की बात हो गई, मतलब कुछ भी बात करिए और सब में महारत हासिल थी। मतलब समझ में नहीं आता था कि कितना याद है उनको, मतलब श्लोकास इतने याद थे कि मतलब आम आदमी को मतलब बस की बात नहीं है वो। ऐसे ही एक बार आपने कहा था कि भाई एक चार्ट दिखाना, तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि वो चार्ट एक आता है। इस चार्ट को जब मैंने दिखाया था तो देखे कि कितना फर्स्ट मतलब पहला बार सिर्फ D1 देखा उन्होंने, और D1 देखने के बाद इसके आगे होगा। जी बिल्कुल फर्स्ट एक चार्ट और है, इसके आगे होगा, आप देखिए। हाँ बिल्कुल, ये चार्ट है, देखें। So Jupiter is placed in the 9th from Venus. 9th from Venus. Then in the 3rd round, person will get married. 3rd round of Jupiter. बिल्कुल। So that means after 36 years. After 36 years. जब मैंने इस चार्ट को दिखाया उनको, तो पहला उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हार्ट के व्यक्ति हैं ये, परंतु निगेटिव लोगों से काफी घिरे रहेंगे। क्या? Surrounded by negative people. जी। फिर बोला कि ये जो व्यक्ति हैं वो हमेशा मतलब इनको हमेशा हेल्थ इशू रहेगा। दूसरा, अपने पिता से दूर रहेंगे, लेकिन पिता जो है वो काफी लॉन्ग लिव्ड रहेंगे, मतलब उनकी आयु लंबी रहेगी। फिर देखिए कि तीसरा बताया कि मैरिड लाइफ जो है वो काफी मतलब कि एक तो मैरिज देर से होगा और मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। इसका कारण क्या? कि वेनस जो है वो सैटर्न के साथ है, द्वादश स्थान में। तो इस तरह से करके आप देखिएगा कि उनका प्रिडिक्शन मतलब जो होता था वो काफी सटीक होता था। इसमें अपने प्रश्न का भी लिया है क्या ये पावर पॉइंट में? प्रश्न का एक सिर्फ एग्जांपल मैंने लिया है, जब उन्होंने एक प्रिडिक्शन दिया था कि आपने तोता पकड़ा है और उसके बाद से आपका कर्म जो है वो खराब हुआ है, आपका प्रोफेशन जो है वो खराब हुआ है। What? He did a prashna and he said you have caught a
जो Parrot. आपने पैरोट पैरोट आपने जब से पैरोट पकड़ा है, हाँ। हाँ, उसके बाद से आपने पैरोट को पकड़ के जब से पिंजड़े में डाला है, उसके बाद से आपका प्रोफेशन खराब हुआ है। My God, that's a brilliant prediction. I mean, ऐसा 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 कई सारा प्रिडिक्शन करते थे वो। जब एक बार मैं गया था किसी को लेकर के, अपने मित्र को लेकर के, तो मेरे मित्र को बोला उन्होंने कि तुम लोग बचपन में गाय पालते थे और एक गाय खो गई थी जो फिर वापस नहीं आई, चरने गई थी और फिर वापस ही नहीं आई। my सही में God. उसके साथ ऐसा हुआ था। He said, another prashna, he said, in childhood you were having two cows and one of the cow got lost. And हाँ, after that, problem started in your life. नहीं नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने बस ऐसे बोला कि बचपन में तुम्हारी एक गाय जो थी, गाय वो खो गई, वो चरने के लिए गई, मतलब कि ग्रेजिंग के लिए गई, हाँ. फिर वापस नहीं आई। Okay. And she did आज के डेट में गाय कौन रखता है? कोई नहीं रखता। nobody keeps लेकिन फिर भी cow. उन्होंने ये बात बोली। Nobody keeps cow. And to make that kind of prediction is brilliant. Yeah. सिर्फ एक बार। I mean, the parrot और thing, सारा- the parrot prediction that you caught a parrot, put it in a cage, and after that your profession has gone down. That is a mother of all Yeah. predictions. सारा का कैलकुलेशन, मतलब सारा का उनका मतलब ज्योतिष के अंदर मतलब समाधान है। ऐसा नहीं है कि कुछ सिद्धि थी या फिर कुछ ये था, सारा ज्योतिष। Wow. एक बार जब किसी और के साथ गए थे हम, तो उनको उन्होंने बोला कि आज सुबह आप स्नान नहीं किए हैं, मतलब यू हैव नॉट टेकन बाथ, सुबह आप स्नान नहीं किए हैं, मतलब डेली प्रेडिक्शन, जो कि आपका क्षेत्र है अभी। तो उन्होंने कहा कि आपने स्नान नहीं किया है, पहली बात। और दूसरी कि आपके आने के क्रम में आपकी जो बेटी थी वो गिर गई है। जब आप आ रहे थे तो उसी समय बेटी, उससे थोड़ी देर पहले बेटी गिरी और उसको कहीं चोट लगा, और सही में जब वो रांची से जा रहे थे तो उनकी बेटी जो थी वो गिर गई थी और उसको चोट लगा था, और तब वो वहां पहुंचे थे। So his first prediction was this gentleman did not take bath in the morning. इन द मॉर्निंग। Second, while coming here, on the way, your daughter fell down and hurt herself. बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज है कि उनका जो भी भविष्यवाणी करते थे, शाम में 4 बजे 5 बजे के बाद स्टार्ट होता था उनका। दिन भर वो मंत्र जाप वगैरह सब चलता रहता था। शाम में 5 बजे से लेकर 8 बजे, मतलब नॉर्मल 8 बजे तक चलता था वही। तो इस तरह की भविष्यवाणियां काफी मुश्किल है करना, लेकिन वो करते थे। Shall I open the chart of this one? बिल्कुल, आप देखिए पैरोट वाला तो मैं भी दे रहा हूँ। 4 अक्टूबर 2008। Oh, you want that actually? हाँ, 4th October or okay. 4 अक्टूबर 2008, 4/10/2008, 4 अक्टूबर 2008, 1900 वाराणसी। Okay, let me show you the chart. I'll make it north and south. बिल्कुल, आप इस चार्ट को देखिए तो जेल का स्थान जो होता है, जेल का स्थान जो होता है वो 6ठा स्थान और 12वां स्थान, ये 2 स्थानों को माना गया जेल का स्थान। 12वां स्थान जो होता है वो आकाश का भी स्थान होता है, अर्थात वो स्थान जहां पर पक्षी उड़ते हैं। 12वां स्थान आकाश का स्थान, जेल का भी स्थान, और 6ठा स्थान भी जेल का स्थान। 6th house is jail, 12th house is jail,
12th house is also sky. स्काई, बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि 12th लॉर्ड जो है जुपिटर, वो 9th में जाकर के बैठे हुए हैं और सैटर्न को अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। सैटर्न की राशि में कौन बैठा है? राहु। राहु का 9th एस्पेक्ट किस पे है? मरकरी पे है। अब राहु की 9th एस्पेक्ट जो है मरकरी पे है और सन पे है, लेकिन यहाँ पर चूंकि राहु की जो डिग्री है वो 22 डिग्री 52 मिनट 22-52 है, Rahu's degree is 22. और मरकरी की भी डिग्री जो है वो 22-50 यहाँ पर है, यहाँ 22-40 दे रहा है। तो आप देखेंगे कि सन की डिग्री उससे कम है, अर्थात राहु के जो समीप में है वो मरकरी है, और राहु कहाँ बैठा है? इनके कर्म के स्थान में। राहु बैठा है कर्म के स्थान में, और मरकरी की डिग्री जो है वो राहु के समीप में है। मरकरी क्या रिप्रेजेंट करता है? तोता को, हरा पक्षी। हरा पक्षी को मरकरी रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, मरकरी अपनी 7वीं दृष्टि से द्वादश स्थान को देख रहा है, 6ठे में बैठा भी है और द्वादश को देख रहा है 7वीं दृष्टि से। मरकरी का नक्षत्र कौन सा है? तो मरकरी है हस्ता नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र क्या होता है? मतलब हाथ से कोई चीज आपने किया है। तो ऐसा चीज जो कि वायु मार्ग में चलने वाला हो, आकाश मार्ग में चलने वाला हो, हरे रंग का हो, और उसको आपने हाथ से पकड़ के कहीं डाला हो, जो 6ठे स्थान में डाला हो आपने। 6ठा स्थान क्या हो गया? जेल हो गया। वहां पर आपने डाला हो, तो उसके बाद से आपका क्या खराब हो गया? 10th स्थान, 10th स्थान, क्योंकि 10th स्थान की दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि 6ठे पे पड़ती है। यहाँ पर यहाँ पर आप इसको एक्टिवेशन टेक्निक भी समझ सकते हैं कि आकाश में चलने वाला, आकाश में उड़ने वाला कोई ऐसा चीज या ऐसा जीव आप कह लें जो आकाश में उड़ रहा है, हरे रंग का है, उसको आपने पिंजड़े में, जेल अर्थात पिंजड़ा, जेल में आपने डाला, अर्थात पिंजड़ा में आपने डाला, तो आपका 10th स्थान खराब हुआ। Okay, I'll explain it in English for. और एक चीज और D9 जब आप देखेंगे तो D9 में भी आप देखेंगे कि 12वें स्थान में मरकरी और राहु साथ पड़े हुए हैं। वो मैंने पहले फट करके देख लिया। आप देखिए, फट करके मैंने पढ़ लिया। फर्स्ट थिंग आई सॉ दैट कि D9 में 12वें स्थान में मरकरी और राहु पड़े हुए हैं। 12वां स्थान आकाश मार्ग का स्थान, मरकरी तोता राहु के साथ में पड़ा हुआ है। सीधे राहु वहां पर कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, तो कर्म को दिक्कत दिया। तो एक कर्म जो व्यक्ति करता है वो उसके दूसरे कर्म को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति का एक किया हुआ कर्म उसके दूसरे कर्म को प्रभावित करता है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा शुद्ध कर्म करे। Okay, I'll explain it quickly, guys. Rahu and Mercury's degree are nearly the same. Sun is pretty behind Mercury. 6th house is jail, 12th house is jail, 12th house is Akash, that is sky also. And Rahu is sitting in the 10th house of karma. Ideally, you want good planets in your 10th house. You don't want bad planets in your 10th house. Bad planets or malefic planets or cheating oriented planets in the 10th house tend to give you bad results, bad karma. So this gentleman was predicted by Gunacharma that you have taken a parrot, put it in a cage. After that, your career got spoiled. So Mercury is parrot, 6th house is jail. Mercury looks at 12th house, that means something from the sky. And Rahu's degreecal aspect affects this combination. And if you notice, in Navmansh, Rahu, Mercury are in the 12th house. So that shows the thing. That's fantastic. That's fantastic. Shall I go ahead with the PowerPoint? हाँ शुतोष जी, नहीं इसमें पावर पॉइंट में नहीं है। अच्छा नहीं, अभी पावर पॉइंट पे जाऊं मैं?
हो गया, मुझे लगता है एक दो और सूत्र होंगे इसको, चूंकि मैंने सोचा था कि इन पे एक बुक लिखी जाए तो उसमें ये मेथड को डाल दिया जाए, लेकिन फिर सोचा कि बुक लिखने में काफी टाइम है, तो फिर कम से कम लोगों को अभी तो पता चले कि भाई क्या अस्तर के प्रिडिक्शन दिया करते थे वो। Okay, this is a beautiful technique that you're sharing of Indra Sharma. Jupiter is placed in own signs and Saturn aspects it. Then at the age of 72, one will face a life and death situation or will have health issues or major accidents. I have to really test this one. Looks very important. Do you have an example chart for this? Okay, Yeah. this is the example chart. So here Jupiter is in the 4th house. Saturn is in the 7th house. So Saturn is aspecting Jupiter. And what happened at the age of 72 to this person? नेक्स्ट स्लाइड में होगा, बिल्कुल। Oops. हाँ, जून 2009 में इनको मेजर एक्सीडेंट हुआ था। Okay. So this technique is working in this chart. Okay. Sounds good. Ladies and gentlemen, do test this technique and let us know in the comment section. This one also? या ये नॉर्मल रूल था, ये जो हमने प्रिडिक्ट एवरीथिंग यूजिंग अ रेयर एंड अननोन दशा में जो हमने एक राशियों का स्पेशल एस्पेक्ट जो उसमें लिया हुआ है वो इन्हीं के द्वारा सिखाया हुआ था। अच्छा। वहाँ इनका नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आज मुझे लगता है कि इनका नाम लेना चाहिए। तो जो स्पेशल एस्पेक्ट दिया हुआ है वो इन्हीं के द्वारा सिखाया हुआ था। काफी विस्तार से उस पुस्तक में लिखी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हमने उसको लिया नहीं, सिर्फ एक नाम लिख लिया अपना, उस पुस्तक का नाम लिख दिया बस। Okay, that sounds great. Well, ladies and gentlemen, if you want to know about this particular technique of Gemini, you got to go and buy this book, predict everything using a rare and unknown dasha. क्योंकि इसमें काफी विस्तार से एक चैप्टर ही दिया हुआ है जेमिनी की दशाओं के बारे में। ऐसा मतलब, क्योंकि आप भी देखे होंगे कि ये पहली बार मैंने सुना था। सिंपल जेमिनी की दशाओं के बारे में क्या होता है कि चर दशाएं जो है वो स्थिर को देखती हैं, नजदीक वाले स्थिर को छोड़ करके। स्थिर दशाएं चर को देखती हैं, नजदीक वाले चर को छोड़ करके, और द्विस्वभाव जो है वो आपस में देखती हैं। लेकिन यहाँ पर जेमिनी की दशाओं का एक अलग ही एस्पेक्ट है। Okay. One more story. हाँ, एक और स्टोरी है, देखिए मेरे ध्यान से उतर रही थी। जब हम लोग कुंभ गए हुए थे फरवरी में, जनवरी फरवरी में जब कुंभ लगा हुआ था इलाहाबाद में, तो मोहित जी से मैं मिला था वहां पर। तो मैं आश्रम में था, आश्रम का जो जगह था मैं वहां पर था। तो मोहित जी आए मेरे से मिलने के लिए, वो और उनके भाई। तो उस समय उनके पास नौकरी नहीं थी, वो तो आप भी जानते हैं, उस समय उनके पास नौकरी नहीं थी। तो मैंने वैसे उनको प्रेडिक्शन दिया था कि भाई अप्रैल के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। मैंने उनको ये प्रेडिक्शन दिया था, मैं अपनी भी बता दूं। तो बड़े परेशान थे, तो मैं आश्रम में ही था और वहीं पर आए वो मिलने के लिए। तो भोजन वगैरह हमने किया, साथ में किया। तो उसके बाद फिर वो बोले कि आप मुझे इंदुनाथ शर्मा जी का नंबर दीजिए और मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैंने उनको फोन कर दिया, उनके भतीजे को मैंने फोन कर दिया। तो ये फिर गए, उनके पास गए। तो इनका चार्ट पकड़ करके इंदुनाथ शर्मा जी ने कहा कि आपको अभी नौकरी नहीं है, पहली बात, और दूसरी जून महीने में आपको नौकरी लग जाएगी। सिर्फ ये दो बात बोली। He just said, just looking at the Rashi chart, no dasha, nothing. ना, सबसे पहले उनको चूंकि आंख से दिखती नहीं थी ठीक से, तो जैसे ही मोहित जी वहां पहुंचे तो इंदुनाथ शर्मा जी ने कहा कि पहले भाई तुम अपना चार्ट बना दो, मेरे स्लेट पे, जो स्लेट था उस पर चार्ट बना दो। तो मोहित जी ने अपना चार्ट बना दिया। बोले दशा लिख दो, दशा लिख दी। तो बोले कि हाँ अब मुझे बताओ कि कौन सा प्लैनेट कहाँ कहाँ है। तो इन्होंने बताया लग्न इसका, लग्न में ये ऐसे जो भी इनका था चार्ट उन्होंने बताया।
दशाएं बताई, तो उन्होंने बोला कि आपको नौकरी अभी नहीं है और नौकरी जो है वो जून महीने में लग जाएगी। ये दो चीजें बोली। और आप जानते हैं उनकी नौकरी जो है 28 जून को लगी थी। तो ऐसे कितने सारे मतलब घटनाएं हैं। Thank you बहुत for sharing. Thank you for sharing. ये बहुत लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन जो कुछ भी मैंने सीखा है वो किताब के रूप में दर्शकों के सामने या फिर कहिए कि ज्योतिष समाज के सामने मैं उसको लाऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसको लाऊंगा। That's very nice. Thank you so much, Ashutosh ji, for coming and sharing some of the techniques and some of the experiences of Indunath Sharma ji. May his soul rest in peace. And today, I would request you to share such astrologers techniques in your upcoming course of Varanasi Banaras astrologers. You know, उसमें एक इनका टेक्निक, वो जो प्रश्न का एक टेक्निक जो है वो दिया गया है, फर्स्ट में ही है वो। you'll be teaching that in the course, is it? हाँ, एक टेक्निक इनका, एक क्लास है उसका। One of his Prashna techniques, Ashutosh ji will be sharing in that upcoming course. Thank you so much. Thank you. नमस्कार।